Hello students, myself Sunil Bansal. Today we will be discussing the types of losses in DC machine. There are generally four types of losses in DC machine. First is your copper losses. Second is your iron loss, or we can say core loss. Third is your stray losses. Fourth is your mechanical losses. Copper losses and iron losses we have also discussed in transformers. Since DC machine is a rotating device, so there are additional losses also, including your copper and iron losses. Those losses are stray losses and mechanical losses. Iron losses is further divided into two: iron losses or core losses we can say. This is your एडी करंट लॉसेस. ये कोर लॉसेस जो है इसको आप एडी करंट लॉसेस समझें, यहाँ पे रिप्लेस कर लें इसको एडी करंट लॉसेस से. And second type is hysteresis losses. Okay, mechanical losses are also divided into two. It is frictional losses. First is your frictional losses and second is your windage losses. Okay, let us discuss each loss in detail. First is your copper loss. Copper loss, as we all know, copper loss are variable losses. They depends upon the load. So these losses are directly proportional to the square of the current flowing in the winding and ohmic resistance of the winding. They are given by the formula I square R. Okay, where I is your current flowing in the winding and R is your ohmic resistance of the winding. So they depends upon the load. So the various copper losses are armature copper losses, shunt field copper losses, series field copper losses in interpole windings. Means the copper losses in different parts of DC machine are given here. Okay, next is your magnetic losses. So these magnetic losses are also known as iron losses or core losses, and these losses occurs in armature core and टीथ वेयर द फ्लक्स इज चेंजिंग. तो ये जो मैग्नेटिक लॉसेस होते हैं या आयरन या कोर लॉसेस होते हैं, जनरली जो हमारा आर्मेचर कोर है उसमें अकर करते हैं. तो दीज लॉसेस आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज योर हिस्टेरेसिस लॉसेस, सेकंड इज योर एडी करंट losses. So let us discuss hysteresis losses and eddy current losses in detail. So first is your hysteresis losses. So this loss is due to the reversal of magnetism of the armature core. Okay, it is due to the reversal of magnetism of the armature core. तो जो आर्मेचर की कोर है उसमें जो मैग्नेटिज्म है उसकी रिवर्सल की वजह से हमारे हिस्टेरेसिस लॉसेस अक्कर होते हैं. हिस्टेरेसिस लॉसेस हमारे पावर लॉसेस ही होते हैं. तो H here represent hysteresis and P represents power loss. Hysteresis losses. So these are the power losses, and hysteresis losses are given by the formula shown in the diagram in the video in front of you. It is eta B to the power 1.6 maximum F V watts. Since these are power losses, so unit is watt. Okay, so what the above notation means, let us see. B maximum means maximum value of flux density in the core. V means volume of the armature core. F is the frequency of magnetic reversals, and eta is your hysteresis coefficient. So hysteresis loss can be reduced by using core material of silicon steel. तो जो हम कोर मटेरियल यूज़ करते हैं वो हम अगर जो सिलिकॉन स्टील का यूज़ करें, वी कैन रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉसेस विच हैज़ लो हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट. क्योंकि हिस्टेरेसिस लॉस जो है वो बेसिकली जो हमारा कोफिशिएंट है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. हिस्टेरेसिस लॉस कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू हमारी कम होगी तो ये हमारे पावर लॉसेस या कह सकते हैं हिस्टेरेसिस लॉसेस कम होते हैं. तो हम अगर जो मटेरियल यूज़ करें सिलिकॉन स्टील तो हम इसको कम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज योर एडी करंट लॉसेस. एडी करंट लॉसेस इज व्हाट? व्हेन द आर्मेचर कोर रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पोल इट ऑल्सो कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स. जब हमारा जो आर्मेचर कोर है या आर्मेचर है वो रोटेट करता है मैग्नेटिक फ्लक्स
में या मैग्नेटिक फील्ड में, या हम कह रहे हैं फ्लक्स में, किसके, जो हमारे स्टेटर पोल्स होते हैं उसके जो उससे जो प्रोड्यूस होता है हमारा फ्लक्स, उसमें जब हमारा आर्मेचर रोटेट करता है तो आर्मेचर कोर जो है वो कट करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो आर्मेचर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है आर्मेचर कोर के अंदर। So this EMF sets up the current in the body of the armature core and is known as eddy current। तो ये जो EMF हमारा इंड्यूस्ड हुआ आर्मेचर के अंदर, तो उसकी वजह से उसमें एक हमारा EMF सेट हो जाएगा, और वो EMF हमारा एडी करंट्स को, उसकी वजह से, उस EMF की वजह से हमारा एडी करंट डेवलप होंगे हमारा आर्मेचर कोर के अंदर। तो एडी करंट लॉसेस इज गिवन बाय PE इक्वल्स टू KE B स्क्वायर मैक्स F स्क्वायर T स्क्वायर V वाट्स। अगेन एडी करंट लॉसेस भी एक हमारे पावर लॉसेस है, तो इसलिए यूनिट हो गई वाट। KE एक कांस्टेंट है, B मैक्स हमारा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन वेबर पर मीटर स्क्वायर है, T जो है इट इज़ स्मॉल t, इट इज़ थिकनेस ऑफ लेमिनेशन इन मीटर, V इज़ वॉल्यूम ऑफ द कोर, तो वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब होगा हमारा। ओके, so F is again frequency as we have discussed in the above formula। so constant KE depends upon the resistance of the core and the system of the unit used। so जो हमारा resistance of the core है उसको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं भाई, ये डिपेंड करेगा हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द कोर के ऊपर KE जो है, और इसको हमें मिनिमम करना होगा। KE को हम मिनिमम करेंगे तो हमारे पावर लॉसेस मिनिमम हो जाएंगे। तो इसको मिनिमम करने के लिए हमें क्या करना होगा, टू मिनिमाइज एडी करंट लॉसेस द आर्मेचर कोर इज़ मेड ऑफ थिन लेमिनेटेड स्टैम्पिंग्स। जैसे हमने ट्रांसफार्मर के कोर में देखा था कि हम ट्रांसफार्मर का जो कोर है उसको सॉलिड नहीं बनाएंगे, उसको हम जो थिन प्लेट्स हैं उसको हम एक जगह जम्ड अप कर लेते हैं। इसी तरह से जो हमारा आर्मेचर कोर है आपका डीसी मोटर का, उसको हम सॉलिड कोर ना बना के उसको थिन प्लेट्स जो हैं उसको हम एक साथ इकट्ठा करके रख देते हैं। द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन यूज्ड फॉर आर्मेचर कोर इज़ 0.35 to 0.5 mm। ओके, नेक्स्ट इज योर मैकेनिकल लॉसेस। तो ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ बेयरिंग्स, air friction, windage losses occurs in DC machine, these are known as mechanical losses। so ये जनरली जो मैकेनिकल लॉसेस हैं ये हमारे बियरिंग्स की वजह से हो सकते हैं, है ना, और जो भी हमारा मूवेबल पार्ट है उसकी वजह से हो सकते हैं। ठीक है, सो जो मैकेनिकल लॉसेस हैं ये हमारे 10 to 20% होते हैं, और फुल लोड लॉसेस। ओके, सो नेक्स्ट इज योर स्ट्रे लोड लॉसेस। सो this stray load losses, these are, we can say कि these are losses which cannot be determined easily। इनको हम आसानी से नहीं देख सकते हैं या खोज सकते हैं। they appear when the machine is loaded। these interchangeable losses are called stray load losses and are due to the following reasons। these are the reasons by which these stray losses occurs। first is your distortion of flux because of the armature reaction। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो हमारा मेन फ्लक्स डिस्टोर्ट हो जाता है उसकी वजह से हमारा एयर जो हमारा ये स्ट्रे लोड लॉसेस है ये हो सकते हैं। ड्यू टू एडी करंट इन कंडक्टर्स देयर इज एन एडिशनल I स्क्वायर R लॉसेस। शॉर्ट सर्किट करंट इन द आर्मेचर कॉइल्स अंडरगोस कम्यूटेशन। सो इन सब की वजह से हमारे स्ट्रे लॉसेस अक्कर करते हैं सिस्टम में, और जो स्ट्रे लॉसेस हैं ये हमारे 0.5 से लेके 1% तक हमारे होते हैं ऑफ टोटल पावर आउटपुट। ओके, थैंक यू, विल कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ मोर टॉपिक्स। थैंक यू।